Very good morning to all of you. So, in the last class, we have completed our topic, that is export import document, in which we have studied the export documents. It is divided into two: principal export documents and the auxiliary export document. So, in the principal export documents, we have studied the commercial invoice, packing list, bill of lading. Next one is airway bill. Next one is certificate of inspection, certificate of origin, bills of exchange. And in the auxiliary export document, we have discussed the what is pro forma invoice, which is required in the exporting the goods and services. Next one is intimation of the inspection. So it is this document is given by the exporter to export inspection agency, that they inform that they ask or they inform the agency to send an inspector for the inspection of the goods and services, goods which are to be exported. Next one is shipping instruction. So this document is also prepared by the exporter for instructing the shipping company about the goods which is exported in their ship. Next one is insurance declaration. So it is also prepared by the exporter who wants to take the insurance policy. So he make the declaration relating to the insurance policy. Next one is shipping order. This document is issued by the shipping company. So it gives the confirmation to the exporter about the space in the ship has been already booked, okay, for the goods of the exporter. Next one is made receipt. So this receipt is issued by the captain or the chief officer of the ship. So this receipt is a acknowledgement that goods are boarded on the ship, okay. Goods are already boarded on the ship, कि goods जो है वो ship पे board हो चुके हैं. And this receipt state that the condition of the goods, okay, कि which the condition of the goods is already good or bad, okay. If they check and the goods are in good condition and the packet is already properly packed, so that they can give the clean made receipt. If it is not satisfied with the packing or the condition of the goods, they will provide the whole made receipts, okay. So always the exporter must insist to clean made receipt only. Next one is application for the certificate of origin. So this application is prepared by the exporter, okay. ये कौन prepare करता है? Exporter prepare करता है and submitted to the Chamber of Commerce. Chamber of Commerce को submit करता है for obtaining the certificate of origin. ये अब वो origin का certificate को obtain करने के लिए. Next one is letter to banks for the collection of documents. So this document is sent by the exporter to banks. It contains the instructions regarding the shipping document to be collected, okay. So in the last class we have already discussed this is all about the auxiliary export document, and we have also started the topic that is import document. So the import document used in the import procedure, ठीक है. जब भी goods क्या होते हैं, import होते हैं, तो उसमें क्या document needed होता है? It is the bill of entry, okay. जब भी goods क्या है, when this document is prepared by the importer, when he got the information that the goods are arrived at the port. In that condition, this document contains the detail of the goods, like number of the invoice number, as well as quantity, price, weight, so that they can calculate the custom duties which is imposed on the imported goods, okay. It is of three types. First one is bill of entry for home consumption. So it is in white in color. Bill of entry for warehousing, it is yellow in color. And next one is export bill of entry. It is green in color, okay. So it is the specimen for the bill of entry. It is like visuals, okay, number of package numbers or the marks, master or the agent, quantity,
यूनिट कितना है, अमाउंट कितने का है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, हर एक गुड्स का क्या है डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू कितनी है, फिर वैल्यू ऑन ईच विच ड्यूटी इज़ असेस्ड कि उस पर कौन सी ड्यूटी लगी है, वैल्यू एडिट रेट क्या है, टैरिफ जो लगा है, अमाउंट कितना हुआ, इंपोर्ट का नेम और एड्रेस यहाँ पे देना है, ड्यूटी कितनी है, रेट, अमाउंट, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आई है, टोटल ड्यूटी कितनी आई, टोटल कितना टैक्स लगा. ओके, सो हियर इट इज़ ऑलरेडी मेंशन दैट we hereby it is also the declaration that the particular given above to be true. So after all these the any exporter will sign कि all जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, पूरी क्या है, सारी ही क्लियर है और सारी ही ट्रू है, कोई भी इनवैलिड नहीं है. तो सारी इंफॉर्मेशन के बाद वो एक्सपोर्टर क्या करता है और इम्पोर्टर दे विल साइंड ऑन दी बिल ऑफ एंट्री. ओके, साइन कर देते हैं. Next one is important terms used in the external trade. Okay, when any importer country or the importing country or the exporter country going for the external trade, there are important terms which is used in the external trade. So first one is free on board. Okay, so under the FOB means free on board contract, the exporter is liable and bear the risk till the delivery of goods on the ship. After this, importer has to bear all the cost and risk of loss, damage from this point onwards. ठीक है, FOB कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल और द लायबल एंड बेयर द रिस्क टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द शिप. कि हर एक अगर कोई भी रिस्क हो गया कि जब भी शिप पे कोई गुड्स क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें एक्सपोर्टर लायबल होगा कि अगर कोई रिस्क है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर एक रिस्क क्या करेगा, एक्सपोर्टर बेयर करेगा टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द शिप, कि जब तक जो भी गुड्स शिप पे हैं वो उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती. आफ्टर द डिलीवरी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर. इसीलिए इम्पोर्टर क्या होता है, जैसे वो शिप से गुड्स को क्या होता है उसको विदड्रॉ किया जाता है, सारा उतारा जाता है वहाँ से, तो पूरा क्रॉस चेक किया जाता है कि गुड्स क्वालिटी में, क्वांटिटी में, उनकी प्राइस और क्वांटिटी उनकी सही है कि नहीं, कहीं वो रिड्यूस तो नहीं हो गए. इसलिए क्या है, पूरे इसकी चेक किया जाता है. तो इसलिए क्या है, जो भी गुड्स क्या हैं जब तक डिलीवर नहीं होते हैं तो इट इज़ द सोल अथॉरिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द लायबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर and he will bear the risk if any circumstances happen. Okay, so after this importer has to bear all the cost and risk of loss. इसके बाद इम्पोर्टर क्या करेगा, उस कॉस्ट को बेयर करेगा अगर कोई रिस्क हो जाता है, रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. उसके बाद कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो जाता है, सो दैट इम्पोर्टर विल बेयर ऑल द कॉस्ट एज वेल एज द रिस्क. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एंड फ्रेट. इट इज़ CFR. Under the CFR contract, the exporter are expected to pay the cost and freight to bring the goods to the port of destination in the importer country. After the importer bear the risk of loss or damage to goods. Cost and freight में क्या होता है कि एक्सपोर्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पे द कॉस्ट वही पे करेगा, फ्रेट वही पे करेगा, टू ब्रिंग द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है, कि वो जो भी गुड्स क्या हैं डेस्टिनेशन पे पोर्ट हुए हैं, इम्पोर्टर कंट्री के जो भी गुड्स किसी भी जो भी डेस्टिनेशन था वहाँ पे जो पोर्ट हुए हैं, तो जो भी कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा, कॉस्ट विल बेयर बाय द एक्सपोर्टर एंड आफ्टर द इम्पोर्टर बेयर द रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज टू गुड्स. और इसके बाद क्या है, जैसी डेस्टिनेशन पे वो गुड्स आ जाएगा उसके बाद इम्पोर्टर क्या करेगा, वो सारे रिस्क को जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसके बाद इम्पोर्टर विल बेयर. उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की नहीं होगी. हो सकता है डेस्टिनेशन पे पोर्ट पे ले जाने के बाद उस जिससे वो गुड्स जा रहा हो, कोई ट्रक या कोई भी व्हीकल से, तो उसका एक्सीडेंट हो जाए. इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपोर्टर विल पे ऑल द लॉस. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर. अब इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ भी डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, सो ही और शी विल बेयर एवरी कॉस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज
cost, insurance and freight. Under CIF contract, the exporter has to bear the cost and freight till the importer's port. Along with these expenses, the exporter has to take a make insurance policy also. After the destination port, the importer bear the risk of loss or the damage to goods. ठीक है, इसमें क्या होता है, CIF means cost, insurance and freight. The exporter has to bear the cost and freight till the importer's port. ठीक है, एक्सपोर्टर ही क्या करेगा, सारे कॉस्ट को बेयर करेगा टिल द इम्पोर्टर्स पोर्ट, इम्पोर्टर के पोर्ट तक सारा वो क्या है, कौन बेयर करेगा, एक्सपोर्टर बेयर करेगा. अलॉन्ग विद दीज एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस के साथ द एक्सपोर्टर हैज़ टू टेक अ मेक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो. और एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेगा कि अगर कोई डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू वो क्या होगा, पैसे सारे रिटर्न हो जाएंगे. एंड आफ्टर द डेस्टिनेशन पोर्ट, उस जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन, जहाँ पे उसको पहुँचना है, उस पोर्ट पे पहुँचने के बाद नाउ द इम्पोर्टर बेयर द रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज टू गुड्स. अब ये क्या है, अब कौन ये बेयर करेगा, नाउ द इम्पोर्टर विल बेयर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स. अब इम्पोर्टर क्या करेगा, वो सारे कॉस्ट को, सारे जो लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है, so he will bear everything. Okay, now the next one is World Trade Organization. It is the WTO. So World Trade Organization is the only global international organization which deals with the rules and regulation of trade between the different nations. It was established on the 1st January 1995. Okay, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. एक सिंगल ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे विच डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. जो किसके साथ डील कर रही है कि डिफरेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेड बिटवीन दी डिफरेंट नेशन. ठीक है, डिफरेंट नेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे वो लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, कौन कौन से सारे डिफरेंट रूल्स हैं, किसको फॉलो करना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट नेशन. डिफरेंट नेशन के बीच में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उनके बीच का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हु विल डिसाइड, हु विल डील, द WTO will taking all the decision. So it was established on 1st Jan 1995. So on 1st Jan 1995 the WTO has established. Okay, now the nature of the World Trade Organization, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, क्या मतलब क्या है, उसका वर्क क्या है, वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है. So WTO deals with the sales of trade between the nations at the global level. ठीक है, WTO क्या करता है, डील करता है सेल ऑफ ट्रेड, जो भी ट्रेड के, जो भी सेल्स करना है ट्रेड के बीच में, ट्रेड बिटवीन द नेशंस एट द ग्लोबल लेवल, कि डिफरेंट नेशंस के बीच में जो भी सेल हो रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, उसको वो क्या करता है, डील करता है एट द ग्लोबल लेवल. मतलब वर्ल्ड लेवल पे वो देखता है कि डिफरेंट नेशंस के बीच में कैसे ट्रेड हो रहे हैं. इट कंटेन्स द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द गवर्नमेंट टू बाइंड द गवर्नमेंट टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसी विद इन एग्रीड लिमिट. वो क्या करता है, इसमें कंटेंट, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ साइंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको साइन करती है टू बाइंड द गवर्नमेंट, कि और जो जिस कंट्री के साथ वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनके साथ बाइंड होती है कि टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसीज़ विद इन दी एग्रीड लिमिट, जो भी एग्रीड लिमिट बनाई गई है उस लिमिट के साथ क्या है, अपनी पॉलिसीज़ को क्या करना है, लिमिट कर देना. मतलब एक गवर्नमेंट क्या है दूसरे गवर्नमेंट के साथ एक साइन करती है. आपको पता है, आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या है, मिलते हैं, वहाँ पे वो लोग साइन करते हैं कि बोलता है ना कि इतने समझौतों के साथ उन्होंने किया. तो ये क्या है कि एक कंट्री जिसके साथ दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, तो उसका वो लोग साइन करते हैं कि वो एग्रीड लिमिट के, मतलब
इतना उसका फंड होगा, इतने लिमिट में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, उस प्रोसेस के थ्रू रन होता है। तो ये कौन रेगुलेट करता है? इट इज़ डन बाय द WTO। इट ऑपरेट विद द पर्पस ऑफ द लिबरलाइजिंग द ट्रेड एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, ये ऑपरेट क्यों होता है? इट ऑपरेट्स विद द पर्पस। इसका पर्पस क्या है? लिबरलाइजिंग द ट्रेड। लिबरलाइजिंग द ट्रेड मीन्स कि ट्रेड को लिबरल कर देना, कि पहले बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं। तो ये क्या है, ट्रेड को एकदम लिबरल कर दिया है, फ्री कर दिया है। एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दे विल फ्री फ्लो, मतलब उनका कोई भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस उन पे पुट नहीं होंगे इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अब हम लोग क्या है कि फ्री बॉर्डर लेस इकॉनमी हो गई, मतलब कोई भी कन्फाइंड लिमिट नहीं है कि यहीं तक है। अब क्या है कि हम अपने गुड्स को फ्रीली किसी भी कंट्री में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के साथ हम ट्रेड में आ सकते हैं। WTO सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। जैसे अब किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो WTO क्या करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट्स। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू क्या करेगा, उनको डिस्प्यूट्स को भी सेटल डाउन करेगा, रिमूव करेगा, सो दैट दे कैन अगेन come in the contract and do their trade, international trade. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly as freely as possible. ये क्या करता है, ये इसका सिंपल मीनिंग यही है, इसका बेसिक मोटिव यही होता है कि इसका मेन फंक्शन है कि ये ट्रेड को इतना इंश्योर करता है कि वो एकदम स्मूथली और फ्रीली हो सके, रन कर सके, मतलब कोई सर्टेन इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हिंडर ना आए। तो इसलिए इसके मेन फंक्शन है कि जो भी ट्रेड हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज़, वो क्या हो, स्मूथली एंड फ्रीली वो कंटिन्यू हो सके एज पॉसिबल, जितना पॉसिबली वो हो सकता है वो कैन ईजिली फ्लो करता है। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ द WTO। बेनिफिट्स ऑफ द WTO, रोल ऑफ WTO एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। कि WTO का बेनिफिट क्या है और रोल क्या है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल एज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO की WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो मेजर बेनिफिट ऑफ WTO आर प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इनके बीच का कोई भी क्या है कि इंटरनेशनल पीस को ये ज़्यादा प्रमोट करती है। मतलब कोई भी कंट्री अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, तो पीस के साथ वो क्या करती है कि आप लोग को जो भी करना है, ट्रेड करना है, तो वो पीस के साथ करो। तो इंटरनेशनल पीस को ये प्रमोट करती है। सेटल डिस्प्यूट्स अमंग दी मेंबर नेशन। जो भी मेंबर नेशन है इसके, WTO के मेंबर नेशंस जो भी हैं, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उसको भी सेटल डाउन करती है। फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री का किसी के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये क्या करेगी, WTO उसके बीच में सेटल डाउन करेगी। मतलब दोनों की बात सुन के कि कहाँ पे इनके बीच में डिफरेंट कॉजेज़ आ रहे हैं, डिस्प्यूट किस टॉपिक पे हो रहा है, तो उनको सुन के, अंडरस्टैंड करके, लिसन करके फिर दे कैन सॉर्ट आउट, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मेक इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल ट्रेड को ये क्या करते हैं, बहुत स्मूथ बना देते हैं। कैसे कि कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन को करके। अब ये नहीं है कि अगर इंडिया में इंडिया के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अमेरिका के लिए अलग हो जाए, तो इससे क्या होगा, इट ऑल्सो वन ऑफ द चांसेस फॉर द डिस्प्यूट। तो इसीलिए क्या करती है वो, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने के लिए कॉमन रूल एंड रेगुलेशन सर्कुलेट करती है, उसको फॉलो करती है। बोलती है हर कंट्री क्या है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर इसमें भी क्या हो जाएगा, बायसनेस हो जाएगा, सो इट इज़ दी ऑल्सो दी वन ऑफ दी कॉज फॉर दी डिस्प्यूट्स अमंग दी कंट्री। इसलिए क्या है, जो भी ट्रेड में हैं वो डिफरेंट जो भी कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सो इट हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग कंट्री बाय गिविंग देम प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करती है, उनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देके, मतलब
उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, प्रेफरेंस देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, इस कंट्री के साथ करो, आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा ऐसा। तो इसलिए जो भी इकोनॉमिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को क्या कर सको, इंक्रीज़ कर सको। फ्री ट्रेड हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ठीक है कि फ्री ट्रेड, इसमें क्या है, फ्री ट्रेड क्या है, अगर फ्री ट्रेड होगा, ट्रेड क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा, लोगों को मिलेगा, एज वेल एज अगर लोगों की क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा तो दे कैन, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल की क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। ओके, सो व्हाट इज WTO? WTO इज एन organization. It is the organization, it is the only global international organization which deals with the rules and regulation of the trade between the different nations। ठीक है, एक ऐसा ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके साथ डील करता है कि ट्रेड, जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रेड के बनाता है बिटवीन दी डिफरेंट नेशन, कि जो भी डिफरेंट नेशन एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो certain rules and regulation is framed by the WTO. It was established on 1st Jan 1995. 1995 में क्या हुआ था, establish हुआ था। The nature of the WTO is WTO deals with the sale of trade between the nation at the global level। WTO क्या करता है, different trade को क्या करता है, सेल्स, डिफरेंट कमोडिटी को सेल होता है, सोल्ड आउट होते हैं बिटवीन दी नेशंस के बीच में एट द ग्लोबल, मतलब ग्लोबली करता है। सो इट कंटेन द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन करता है विच इज़ साइंड बाय द गवर्नमेंट टू बाइंड द गवर्नमेंट्स, एक जिसके साथ बाइंड जो ट्रेड करेंगे उन कंट्रियों के साथ क्या एक साइन कराता है कॉन्ट्रैक्ट को, टू कीप देयर पॉलिसीज़ विद इन दी एग्रीड लिमिट, कि जो भी एग्रीड लिमिट तक वो पॉलिसीज़ को क्या करें, कीप किए रहे, मतलब अग्रीड लिमिट तक उनको जितने भी जिस ट्रेड में आए हैं दे कैन फुलफिल इट। इट ऑपरेट्स विद द पर्पस ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड। इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या है कि ट्रेड को लिबरल कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस को पुट नहीं करना है, फ्री कर देना है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी गुड्स हैं फ्री फ्लो उनका होता रहे। WTO सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू दी सम न्यूट्रल प्रोसीजर। और WTO क्या करता है कि डिफरेंट डिस्प्यूट्स को भी क्या करता है, अगर डिफरेंट नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है उसको भी वो सेटल डाउन करता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली एज फ्रीली एज पॉसिबल। ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही है कि जो ट्रेड है वो क्या हो, ईजिली एज वेल एज स्मूथली रन करता रहे। नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स ऑफ द WTO and the roles of the WTO. Okay, so first one is it's promote the international peace। international peace की बात करता है, इसको प्रमोट करता है, जो भी डिफरेंट नेशंस के बीच में डिस्प्यूट है उनको सेटल डाउन करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने के लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ करता है कि डिफरेंट कंट्री के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, इट विल बी द सेम। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है बाय गिविंग दी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उनको प्रेफरेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज फ्री ट्रेड हेल्प इन इम्प्रूविंग दी क्वालिटी प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री में क्या है, फ्री ट्रेड के लिए भी मोटिवेट करता है एंड प्रोवाइड दी क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इम्प्रूविंग दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दी पीपल, की लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करता है। ओके, so the next topic is mode of entering into the international trade। so what is the mode entering into the international trade? किसी को अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उसका क्या मोड होगा, किस मोड से वो लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। सो फर्स्ट वन इज what we will discuss here, exporting and importing। so exporting refers to a sending of goods and services from home country to a foreign country, and importing means buying goods and services
from a foreign country. The exporting and importing can be done in two ways. Can be done direct or indirect. Direct means firms itself approach in the foreign country and complete all the formalities itself. On the other hand, when a firm employs a middleman to perform these formalities, then it is called the indirect exporting or importing. ठीक है, exporting की meaning क्या हुई? Sending of goods and services from the home country to